Assalamualaikum dear students. I hope that you all are doing well at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. Page number 9. हमने नॉन फिक्शन जो आपका टेक्स्ट नंबर 2 था वो स्टार्ट कर दिया था मक्यू. ओके हमने पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2 रीड आउट कर लिया था, प्लस हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था. आई होप आपको वो समझ आ गई होगी. उसमें आपको एक मक्यू एलिफेंट के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम मक्यू है और वो उसको जख्म लग गए थे, वो जख्मी हो गई थी टाइगर के क्लॉज से, टाइगर के नेल्स और पंजों से, और उसका इलाज इस डॉक्टर जो कि वेट था इंग्लिश, इसने उसका इलाज किया था और इसको कैंप भेज दिया था. अब आगे की स्टोरी हम पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 में करेंगे. सो लेट्स रीड आउट इट फर्स्ट और आप इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करें. Her rider did not reply as he had not caught what I said, but McHugh swung round at right angles to the direction in which she was going and came towards me. Swung, its English meaning is, look at the board, move back and forth. Its Urdu meaning is lehraya. She walked straight up to me where I was sitting. I patted her on the trunk. Patted meaning, its English meaning is touch gently and quickly with the flat of the hand. Its Urdu meaning is thaptapana. So I patted her on the trunk and gave her a banana off my table, and then without any word of command she dropped into the sitting position and leant to right over towards me so as to show me her back. Having patted her, I told her to get up, and away she went, leaving me with the agreeable conviction that she had come to say thank you. Then I began to suspect that perhaps on hearing my voice, with which she had become familiar, she had done it merely from habit. Conviction meaning is, its English meaning is a firmly held belief or opinion. Its Urdu meaning is yaqeen. Turn out page number 10, paragraph number 4. But later on, when I inspected her, I got a surprise. She was the last in the row, and I went over her back very carefully, kneading the wounds with my hands. Kneading, its English meaning is, look at the board, massage or squeeze with hand, dabana. Alright, and I found one little hole which still separated. Separated, its English meaning is wound filled with pus. Pus se bara zakham. There was great tenderness along a line. Tenderness, its English meaning is sensitivity to pain. Its Urdu meaning is dard or hasasiyat. Tenderness along a line 9 inches long where the wound had healed over. I was undoubtedly infected. McHugh let me open it up to its full length then and then, although my doing so obviously gave her great pain. But she was a good patient. Paragraph number 5. This made me think over the incident again. I can never be quite sure that she came and showed me her back in order to tell me that it was still painful. But I am sure that she liked me, trusted me, and was grateful, and that we were very good friends. Okay, now come to the explanation. First line of the third paragraph is, her rider did not reply as he had not caught what I said, but McHugh swung round at right angles to the direction in which she was going. कहते हैं जब मैंने उस राइडर से पूछा कि मक्यू की बैक कैसी है, अब उसकी बैक जिसपे जख्म थे वो अब वो उसकी बैक कैसी है, तो उसके राइडर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उसने he had not caught what I said, उसने सुना नहीं जो मैंने कहा. पर मक्यू जो वो शी एलिफेंट थी उसने सुन लिया, मेरी आवाज़ उसने सुन ली
और वो पीछे मेरी तरफ मुड़ गई और सीधा आने लगी। इन विच शी वॉज गोइंग, द डायरेक्शन इन विच शी वॉज गोइंग, वो अपने जो रास्ते पे जा रही थी उससे पीछे मुड़ी और मेरे पास आ गई। एंड केम टूवर्ड्स मी, शी वॉक्ड स्ट्रेट अप टू मी वेयर आई वॉज सिटिंग, वो मेरे पास सीधा आई जहां पे मैं बैठा हुआ था। I patted her on the trunk and gave her a banana off my table, and then without any word of command she dropped into a sitting position and leant right over towards me. कहते हैं कि मैंने उसके ऊपर, उसकी जो सूंड थी उसके ऊपर मैंने थपथपाया, उसके ऊपर मैंने पैट किया, मैंने टच किया उसको, क्विकली सा जेंटली सा मैंने उसको टच दिया उसके सूंड पे जो उसकी ट्रंक थी, और उसको मैंने एक बनाना अपनी टेबल से उठा के दे दिया। और फिर मैंने उसको विदाउट एनी कमांड, उसको मैंने किसी हुक्म के बजाय वो आके बैठ गई, सिटिंग पोजीशन आके मेरे साथ बैठ गई, और एंड लीन्ड राइट ओवर टुवर्ड्स मी, और मेरे साथ बैठ के आके झुक गई। जब वो झुक गई तो वो मुझे अपना जो उसकी बैक थी वो बताना चाह रही थी, सो एज टू शो मी हर बैक, कि वो मेरी कमर देख ले। Having patted her, I told her to ta. जब मैंने उसको थपथपाया, थपथपाने के बाद मैंने उसको कहा कि उठो, ता मतलब उठो, get up. And away she went, leaving me with the agreeable conviction that she had come to say thank you. कहता है कि वो उठ गई और मुझसे बस अवे शी वेंट लीविंग मी विद एग्रीबल कन्विक्शन, वो जाने लगी थी और इस यकीन के साथ, मैं इस यकीन से कह सकता हूँ कि ये आई इसलिए थी ताकि वो मुझे थैंक यू कह सके। वो कहता है कि मैं इस यकीन, ये मैं बहुत यकीन से कहता हूँ कि वो आई ही इसलिए थी कि ताकि वो मुझे थैंक यू बोल सके। Then I began to suspect that perhaps on hearing my voice with which she had become familiar, she had done it merely from habit. कहते हैं कि फिर मैं सोचने लगा, मैंने एक गेस लगाया, मैंने एक सस्पेक्ट किया कि ये इसने मेरी आवाज़ सुनी थी इसलिए ये मेरे पास आ गई थी, क्योंकि इसको मेरी जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी लगी, और ये आदत ये अपनी आदत की वजह से आके मेरे साथ बैठ गई, क्योंकि इसको मेरे साथ आदत हो चुकी थी। ओके, now page number 10 paragraph number 4. But later on when I inspected her I got a surprise. कहते हैं कि कुछ देर बाद जब मैंने उसको एग्जामिन किया, उसको क्लोजली देखा, उसको नज़दीक से देखा, तो मुझे सरप्राइज मिला, मैं बहुत शॉक्ड हो गया। किस वजह से? आगे पढ़ते हैं। She was the last in the row and I went over her back very carefully. वो सबसे आखिर में थी, लाइन में सिफ्ट में सबसे वो आखिर में थी, और मैं उसकी बैक को आराम आराम से देखने लगा। Kneading the wounds with my hands. उसके जो wounds थे, जो जख्म थे, उसको आराम आराम से मैं नीड करने लगा, प्रेस करने लगा अपने हाथों से। And I found one little hole which still separated, और मुझे एक छोटा सा सुराख उधर दिखाई दिया जो कि अभी भी separated था, जो कि पस से भरा हुआ था, जो लिक्विड से भरा हुआ था। There was great tenderness along a line 9 inches long where the wound had healed over. कहते हैं कि वो जो 9 इंच का जख्म था वो भर तो गया था, पर उसमें अभी भी थोड़ी बहुत टेंडरनेस, थोड़ी बहुत दर्द और हसासियत थी। It was undoubtedly infected. वो बिलाशुबा इन्फेक्शन था उसके होल में। मक्यू let me open it up to its full length. उस शी एलिफेंट मक्यू ने मुझे अलाउ किया ताकि मैं उसका जख्म खोल दूँ। मैंने जब उसका जख्म खोला, उसके पूरे लेंथ तक मैंने उसका जख्म खोल दिया। Then although my doing so obviously gave her great pain, but she was a good patient. कहते हैं कि जब मैंने उसका फुल वो जो जख्म था, जो 9 इंच का जख्म था, पूरा खोल दिया, पर उसने मुझे खोलने दिया, और जाहिर बात है उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रेट पेन हुई होगी, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हुई होगी, पर फिर भी उसने मुझे अपना जख्म खोलने दिया, क्योंकि वो एक अच्छी पेशेंट थी, वो एक अच्छी मरीज़ा थी। Okay, now paragraph number 5. This made me think over the incident again. ये जो सब कुछ हुआ, कहता है कि मुझे इस वाक़ये पर इसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि I can never be quite sure that she came and showed me her back. कहते हैं मैं इसको बिल्कुल इस बात के मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता, मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि वो इसलिए आई थी कि वो मुझे अपना बैक बता सके, in order to tell me that it was still painful, ताकि मुझे ये बता सके, मुझे अपना बैक बता सके कि वो अभी भी उसके अंदर दर्द है और वो दर्द महसूस करती है अपने बैक पे। मैं इस बात का बिल्कुल यकीन ही नहीं कर सकते कि वो मेरे पास ये बताने के लिए आई थी। बट आई एम श्योर दैट शी लाइक्ड मी,
कि मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद करती है। शी ट्रस्टेड मी, उसने मुझ पर भरोसा किया। एंड वॉज ग्रेटफुल, और वो मेरी शुक्रगुजार थी। एंड दैट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। इसी तरह आपका पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 कवर अप हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप बोर्ड से डिफिकल्ट वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग प्लस उर्दू मीनिंग्स नोट कर दें। सो हियर इट एंड्स।